Express. So it's the 10th season you're... Which sir are you addressing? Okay. So it's been 10 years that you're hosting this show and 10th season that you're hosting the show in 19 years. This is the 11th one. Yes, but one season Shahrukh hosted, so 10th for you. Is that right? No, 11 was... Yeah, okay. So sir, what is the emotion when you come on set for the first time every season? What is the kind of emotion that goes in you? I mean, tell us about that. Yeah, I was just telling you that it's the opportunity that I get to meet with a contestant, to know his story, to know where he comes from, to know what kind of conditions he has lived his life, and what he is aspiring to become or be. And they are so emotional and so breathtakingly innovative in the way they have conducted their lives and finally managed to come here. Many a times you must have seen that after we play Fastest Finger First, after they win the Fastest Finger First, they just break into so much emotion. Sometimes they break into tears, sometimes they get up and start dancing. It just shows that how longingly they've been waiting for this moment. And for us then, well, for me as an anchor, I just feel that I hope that the emotion that they've brought along to express themselves in this manner is translated on this hot seat, and they're able to win what they have worked so many years and so hard for. That, of course, is the first reason. The other, of course, is how is this show going out to the audience, and in particular the audience that comes and sits here. They are I feel that they are the ones that provoke me, that motivate me. When I walk on and they cheer and they scream, with each victory that the contestant wins and they show expression, I feel it's just an expression that audiences that are watching the show are also going through. So we judge what the audience is going to and how it's going to react by what our live audience reacts. And they are very important, I feel. These are some of the emotions that go through. For Karamveer, I've just been saying that some of our Karamveers have been just unbelievable examples, and they've been very moving for me particularly, because I've lived with a lot of them and their stories. We've had women who've been attacked, had acid attacks, and have still continued to come here and narrate their lives. It's not easy for a woman to do that. We've had people whose sons and whose children have thrown them out of the homes, and this gentleman has gone and picked them up and given them some kind of respect. It's unbelievable to know that in today's world there are children that are able to do this, and yet how wonderful that there are some people out there who are caring and look after them. We've had some great award winners, international award winners who worked for, children and protecting children from child labor. We've had people who have worked in the city like Banaras and helped young girls from prostitution. All these stories are just so emotional and so motivating that I must admit that every time I go back at night after finishing this, it remains with you for a very long time. And many a times I find it reflected in some of the things that I do, or I hope that many do. There are many people that actually watch one of our shows and get so impressed that they write in and they actually seek to know, whether they can be of some assistance, they can help. And that's just wonderful as a show, and it's wonderful as a channel for them to think that we should have elements like this in our shows so that it motivates a lot of the people. It's not just one or two people. It's when a lot of people in the country step out and want to help. It makes a lot of difference. It's like if there's a crisis. We've had martyrs. We've had farmer situations who are committing suicide. We've had floods and devastation in Kerala and Maharashtra and in Odisha and Bengal and Bihar. And
it's just wonderful that when one person makes an initiative that a lot of people just want to copy him and want to join in together to see whatever they can do. Yes, the government does a lot, but it's just wonderful to see a collective effort coming in. And that's what I find when I play currently, that I find a lot of people collectively. I had somebody from America who's on my fan mail. When they saw the farmer issue or the girl child issue, actually write in and say, how can I make a contribution? I don't earn much, but can I just give $500? I mean, it's just that little motivation and that initiative that comes from these people that shows that something is going inside their hearts and minds for them to be able to do something like this. So that's what's really very interesting for me and motivating for me. And sir, at 76, where do you find the passion and energy to work so hard? Sorry? At 76, where do you find the passion and energy to still work so hard? I got to do a job. It's another job. You stop getting a job these days, you know. Yes, sir. Check. Amitabh sir, इधर. Yes. सर नमस्कार here. Oh yeah, sorry. नमस्कार, मेरा नाम अंकिता तिवारी है. मैं पहली बार आपसे मुखातिब हो रही हूँ मेरे करियर में. तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि ये सीजन भी ऑफ कोर्स आप ही ने होस्ट किया है. सर मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है. मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार की जो टैग लाइन है वो है डटे रहो. तो अड़े रहो. तो कहीं ना कहीं आप एक लिविंग एग्जाम्पल हैं अड़े रहने का, बिकॉज कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव में भी आप डटे रहे, आप अड़े रहे. क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, इस बार की टैग लाइन के बारे में? ये तो इन्होंने टैग लाइन बनाया है, इनसे पूछिए. मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है. मुझे काम मिलता रहता है, मैं करता रहता हूँ. मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में अड़ा रहा हूँ. और जब तक ये जीवन है तब तक तो संघर्ष बना रहेगा और अड़े रहेंगे हम, और क्या. सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी. केबीसी के 19 साल कंप्लीट हो गए हैं और आप जो हैं वो लगभग हर सीजन में ही जुड़े रहे हैं. एक लंबी जर्नी है आपकी साथ में. आप एज अ पर्सन कितने इवॉल्व हुए हैं इन 19 सालों में केबीसी के साथ? अपने बारे में बोलना बड़ा कठिन होगा. जैसा ये लोग कहते हैं करने को, वो मैं करने का प्रयत्न करता हूँ. तो ये तो किसी और से पूछना होगा कि मैं इन्वॉल्व हूँ या नहीं हूँ. क्योंकि अगर ये बताएंगे तो फिर पता चलेगा कि अगले साल हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं. सर इस बार का म्यूजिक भी थोड़ा अलग है. अजय अतुल ने जो है वो एक और म्यूजिक जो है कंपोज किया है. किस तरीके का आपका उस पर विचार है? या इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, बट अजय अतुल जी बहुत ही प्रख्यात संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं. इस बार ये काम उनको दिया गया और उन्होंने मैसेडोनियन फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के सहयोग से जो हमारी सिग्नेचर ट्यून है उसे बनाया है. बहुत ही भारी भरकम लगती है और सुनने में अच्छा लगता है. आपने सुना होगा. सर आपसे एक सवाल है. मेरा नाम दिलीप ठाकुर है. आप में कितना बदलाव आ गया? सर ये दाढ़ी बढ़ गई है, थोड़ी उम्र बढ़ गई है, बात अलग है. वजन बढ़ गया है. हाँ जी, ये ऐसे प्रोग्राम की वजह से आपने कितना बदलाव आ गया? सवाल जवाब, सवाल आते हैं, सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, नए लोग. या मेरी भी उसमें जिज्ञासा बढ़ती है. बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है. वो जब प्रश्न आता है तो हमें पता चलता है. और फिर कभी समाज में बैठते हैं अपने यार दोस्तों के साथ, तो उनके साथ हम बोलते हैं कि तुमको पता है कुछ ऐसा होता है, तो वो कहते हैं नहीं पता. तो मुझे पता हूँ, मैं बताता हूँ. तो हमारी जो है जिज्ञासा बढ़ जाती है, हमारी नॉलेज बढ़ जाती है. तो हम लोग अपने आप को बहुत 30 मार खां समझने लगते हैं. अच्छा, 7 नवंबर 1969 को आपकी 7 हिंदुस्तान में रिलीज हुई. हाँ जी, 7 नवंबर 1969 आपकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तान में रिलीज हुई. अभी 50 साल होंगे 7 नवंबर को. क्या इस प्रोग्राम में आप उसका सेलिब्रेशन करेंगे या और कुछ सोचा है? सर मैं 50 साल तो हो रहे हैं. मैं ये सब उत्सव वगैरह में विश्वास नहीं रखता हूँ. अच्छा, सोनी के लिए सवाल है. आप सोशल हेल्प करते रहते इस प्रोग्राम के लिए. अभी महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई है उसके लिए कुछ सोचा है आपने? कुछ हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे? जी बिल्कुल. यहाँ आने से पहले मैं अपनी टीम के साथ बैठ के यही डिस्कस कर रहा था कि हम क्या कर सकते हैं महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई
और महाराष्ट्र में ही नहीं बस कर्नाटका में भी बहुत बाढ़ है और केरला में भी है। तो किस तरह से हम अपना योगदान दे सकते हैं, काफ़ी काम उसके ऊपर हो रहा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप हमारे नेटवर्क पे भी देखेंगे हम क्या काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने दर्शकों को भी इंगेज करें और इन्वॉल्व करें इस मदद में, इसलिए हम अपना नेटवर्क भी यूज़ करेंगे to make an appeal to our viewers to also come forward and help. हम अपनी तरफ से और हमारे जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उन सबको इन्वॉल्व करके हम काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाय सर, दिस इज किरण फ्रॉम दैनिक भास्कर। मेरा सवाल अमिताभ सर से। सर अगर Oh, sorry. Yeah, sorry. सर अगर इस खेल का For me? मौका Yeah. अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को मौका मिले हॉट सीट पे बैठने के लिए, तो क्या लगता है कौन सबसे आगे तक जाएगा? कौन है जो बहुत सारे सवाल या बहुत क्यूरियोसिटी रहता है जिनमें ये सब सवाल के जवाब देने के लिए, तो आपको क्या लगता है कौन आगे तक जाएगा आपके फैमिली मेंबर्स में? जी, मेरे परिवार में सब लोग देखते हैं कार्यक्रम, जया देखती हैं और वो कुछ भी हो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो देखती हैं। इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको यहाँ पब्लिकली। और घर वाले जो हैं वो खेलते हैं इसको, कभी श्वेता खेलती है, कभी ऐश्वर्या खेलती हैं, और घर में बैठे बैठे कभी प्रश्नावली होती रहती है तो सब उसका जवाब देते हैं। तो अगर उनको आना हो तो जो खेल के नियम हैं और सोनी चैनल के नियम हैं उसमें परिवार का कोई सदस्य आ नहीं सकता है यहाँ। तो नियमों का पालन करते हुए हमने उनको अलग रखा हुआ। हाँ जी, आराध्या जी हाँ देखती हैं। अब ये तो वो स्वयं ही बताएंगे, अभी वो है नहीं यहाँ पर, क्या किया जाए। हाँ जी, यस यस बात करती हैं वो जी। नहीं वो देखती हैं, इश्तिहार वगैरह देखती हैं सड़कों पर, हमारा जब इश्तिहार आता है चैनल पे तो उसको देखती हैं और बात करती हैं हमसे। एक आध बार हमने ऐसे घर में बैठे बैठे कभी ऐसे प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, तो वो कहती हैं कि हाँ इसका जवाब हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बस इतना ही तक रहता है। एक घरेलू मामला है, इसमें क्या। हेलो हेलो सर, हियर सर 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 हियर। हेलो कल्पेश फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स। लास्ट पूरे हफ्ते से महाराष्ट्र में बाढ़ है, तो उसके ऊपर कोई भी बॉलीवुड कलाकार और कोई भी शख्स व्यक्त नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? सर ऐसा सोचना गलत है। बहुत से लोग चैरिटेबल काम करते हैं लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं और ना ही मीडिया को बोलते हैं। उनमें से एक आपके सामने है जो आपसे बात करता है, और मैं ये कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमने इतना किया यहाँ पर, हमने इतना किया यहाँ पर, लेकिन जो लोग हैं जो इस संबंध में काम कर रहे हैं उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। क्या आप सब वोटर्स को अपील करोगे, शख्स को अपील करोगे, व्यूवर्स को? हाँ जी, सब अपील करोगे व्यूवर्स को आप? जी अवश्य। बल्कि यहाँ आने से पहले अभी अभी मुख्यमंत्री के दफ्तर से मैं बात कर रहा था, मैं उनसे जानना चाह रहा था कि कोई अगर हम अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कुछ बात बोल सकें कि यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, वहाँ पर आप योगदान कर सकते हैं। Good afternoon, Amitabh sir. To your right. Sir, Swarupa here from Latest Team. My question to you is your next role, Vijay Barsey, that is a very inspiring story. Also, Anand Kumar's Super 30 May story also came from KBC. So, is your aim that in the future you present more such motivating stories to the world and also to Bollywood? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने कहा नौकरी मिल जाती है तो हम खुश होते हैं। वो कहानी लेके आ गया कि ऐसी कहानी बनानी, हमने कहा ठीक है। Sir, this is Dharani from Telechakkar. Sir, if you are made to sit the other side of the chair, who do you think will make for a perfect host? ये तो सोनी डिसाइड करेंगे। मैं तो बहुत घबराता हूँ इधर बैठने, क्योंकि मैं एक आध बार ऐसे ही ट्रायल के लिए बैठा, एक आध ही क्वेश्चन का उत्तर दे सका। हमारी जनरल नॉलेज बहुत खराब है। But anyone
that comes in your mind, sir? कोई भी आ जाए, जो भी कहेंगे. मेरे दिमाग में एक आते हैं, वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन. And also, I wanted to know that, and this is that can we see the new season of Junior KBC that used to air way back? Since kids show has always been famous and has been viewed a lot, so that's why I wanted to ask, any plan to bring back with new season? लास्ट पिछले साल हमने एक वीक एज अ स्पेशल किया था. कौन बनेगा करोड़पति, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि साल में एक पर्टिकुलर 2 महीनों के लिए 12-13 हफ्तों के लिए आता है. तो उस दौरान अभी इमीडिएटली ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट हम करेंगे, क्यों नहीं. हम बच्चों का सिंगिंग और डांसिंग शो चलाते हैं, तो कौन बनेगा करोड़पति बच्चों का हो सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ नहीं. Thank you. Sir, Yeah. That's it, Galpan. सर, ये हमने जानबूझ के नहीं किया. It was just a mere coincidence. Star came about with this idea. Circumstances were such that everyone felt that I should not go there, especially people from my home. But I just felt that it was something new. The people that were responsible for the show were very insistent. I didn't know what I was getting into. I asked them, can I see the show? They showed me some tapes. Then I said, can I go and see how it's conducted? So we went to England and we actually saw the host there conduct the show. And then I said, if you can give me the same atmosphere that I've just seen in England, then I'd like to do it. And to give credit to them and to Sony thereafter, every time there has been a replication, and indeed a better replication of what I saw in England many, many years ago. And each year there are new innovations that Sony keeps putting in to, make the set look better, create atmosphere which is conducive to the audience as well as to the host and to the contestant. That requires a lot of labor, a lot of thinking. And I really must congratulate Sony for every year coming up with new thoughts, new ideas. What can we do to make the set look better? What can we do to make the contestants more comfortable? How can we improve the routine of the show? Most of the guidelines that the show has, we can't change that as per law, but we do innovate. And one of the things that I was listening on, and I want to just, is the flip the question. In the flip the question, it's been there before. So when you don't like a question, you can take that lifeline and you'll get a fresh one. But the novelty this year is that there are about 11 subjects from which you can choose a question. So it could be entertainment, sports, literature, religion. There are about 11 कम से कम आम जो विषय हैं, उनकी एक सूची बनी हुई है. And before the contestant comes onto the hot seat, he's given an opportunity to choose, were he to get the flip the question lifeline, which issue would he choose, or which subject would he choose? And that is known to us before he comes to the show. And when we deploy the flip the question, the 11 list comes up, and he chooses, I would like my flip the question to be, say, religion, or say sports. And the computer then designs the question according to his wish. And he gets a question on sports, or he gets a question on religion. That is the novelty, I feel, which has been very conducive. It's actually contestant friendly, because we're actually wanting to help him. If he's used a lifeline, and the lifeline is there to provide life for him. And this flip the question is one of the good, novelties that we're introducing in this show.
So there are about 11 issues and 11 subjects in our lives, and he chooses a subject before coming onto the show, and when he uses the flip the question, he picks that one subject, and on that subject, हमारा सर नमस्ते कर दीजिए उसको, बेचारा कब से अपना सर हिला रहा है। आ जाओ, वापस आ जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू क्यू बगी, थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर, सर ये घूमता है चारों तरफ। तो मान लीजिए अगर हमने प्रश्न पूछा और वो 10वें प्रश्न के बाद है, जबकि समय की कोई पाबंदी नहीं होती, तो कंटेस्टेंट जो है वो सोचता है, उसको समय मिलता है, तो ये घूमता रहता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो कैमरा है ये कंटेस्टेंट की सोच है, उसकी सोच विचार है। वो जाएगा और घूमेगा और जा करके कभी सामने आ जाएगा, कभी पीछे चला जाएगा, ऐसा काम करता है सर। कैमरा के ऊपर ये जब टीवी पे देखेंगे, मैंने अभी देखा नहीं कैसा लगता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगेगा। या टेक्नोलॉजीज होती हैं जो हर साल कुछ नया नया लेकर के आता है चैनल में, वो आपको होस्ट करने में भी हेल्प करती है। ये इनके फैमिली की वजह से आपकी होस्टिंग में भी कुछ ऐड ऑन होगा, कुछ आपको हेल्प मिलती है क्या? नहीं, हमको कोई सहायता नहीं मिलती। हमको ये लोग बैठा देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। कई बार गलतियां हो जाती हैं तो कहने रुक जाइए, आपने गलत बोला है, यहाँ लाइट ऐसे आनी चाहिए, कैमरा ऐसे चलना चाहिए। पर ये यूनिट इतना अच्छा है और मज़ा हुआ यूनिट है। तो एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ हमारे जो केबीसी का पूरी टीम है। 200-250 लोग काम करते हैं और उन सबको मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनका अगर सहयोग न मिले तो ये शो नहीं चल सकता। उनकी ना आप शक्ल देखते हैं, ना आप सूरत देखते हैं, ना उनकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन विदाउट देम दिस शो इज़ नथिंग एंड दे वर्क सो हार्ड and make sure that every little detail, it's a tough game, I tell you. Electronically, mechanically, it's a very, very tough game. We have 10 contestants, they have separate video screens, how the question will come on, what is the timing of this, how the lights will come on. It's a nightmare. But, you know, they are so good and so efficient. I really want to thank them. Thank you so much. This is I have a question here. Purely right. ये यहाँ पर हमारी वो जो हमारे कपड़ा पहनाती है ना, ये वो हैं प्रिया just stand up and come here. She is the designer. She's the designer and she's been designing all the clothes. So maybe Priya, you can tell them something about. You have a mic? The socks are Sir's style element that he brings every year. Like last year we have got brooches and. पूरे शरीर में आपको हमारा सिर्फ मोजा दिख रहा है। Last year Sir had introduced those brooches on tiles and they became very famous. In the first week, the promo aired, all the stores were carrying it. This year we are carrying forth the 3-piece suits and the bangalas from last season that did very well. And so this year we're going to experiment a little bit the way we tie the knots, the ties, Eldridge knot and Trinity knot, and there are different knots, scale knots, and it's only Sir that makes all the designs look so good. And I want to thank him for the opportunity because had he not given me the opportunity, I was styling for 7 years, but I wasn't designing for him, and it's Sir that gave me the opportunity to design for him since last year. So thank you very much. मैडम ये पीला मोजा मैं घर से लाया हूँ अपने आप। गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। पहने वाला था काला, लेकिन मिला नहीं तो पीला पहन। सुंदर लग रहा है जैसे वो। तो महिला जो कर्मवीर की थी, उन्होंने कहा जब ये थोड़ा सी इसकी मानसिक हालत ठीक हो गई तो हमने पता किया इसका असली नाम है संतोष। तो मैंने उससे कहा अरे भाई संतोष आओ, तुमसे हम मिलना चाहते हैं। आपको मालूम है उसने क्या जवाब दिया? मेरा नाम संतोष नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद है, क्योंकि मोहम्मद नाम से इस महिला ने उसकी देख रेख की, तो अब वो मोहम्मद हो गया। So this is the kind of effect that, you know, these people have.
They formed an association. It becomes a family. They understand this, that this person is looking after me, therefore they are my family. That's the association. ऐसे बहुत से किस्से होते हैं. Lot of young people who have thrown their parents out of the house. Those parents have come and sat here. And when I ask them, you know, where is your son? Where is your home? This person is my son. That Karamveer jo humne bulaya. You know, these are the bondings that happen in these shows. And you don't get to hear them, you don't get to see them. And it's so wonderful that we are able to do that. अमित जी, Yeah, for you. जी, थोड़ी देर पहले हम लोग कंटेस्टेंट्स की बात कर रहे थे कि कैसे वो शो को रिच बनाते हैं, कैसे सर बोले थे कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए. तो जो कंटेस्टेंट आते हैं शो पे, वो यूजुअली हम देखते हैं कि पीछे बहुत खूबसूरत सी ऐसा स्ट्रगल या उनकी ऐसी बैक स्टोरी ज़रूर होती है. तो मतलब जैसे शो है, इसमें जो आप चूज़ करते हैं तो उसमें सवाल जवाब होते हैं, जो सही सवाल जवाब देते हैं उन्हें चूज़ किया जाता है. तो लाइक मतलब ये सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होता है, तो यूजुअली क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादातर वो एक स्ट्रगल या इमोशन, क्या ये मतलब बिकॉज शो अच्छा हो इस वजह से होता है, किस तरीके से सिलेक्शन में नहीं लगता, जैसे आपका थीम में अड़े रहो इस बार का, तो शायद वो कंटेस्टेंट वैसे होने चाहिए जो इस थीम को रेप्लिकेट करें, या ऐसे कैसे सिलेक्शन का क्या रहता है आपका? मैडम, I'll just say something before you say. मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके जीवन में कोई परिस्थितियां न घटी हों. कहीं ना कहीं उसको दुख हुआ है, कहीं ना कहीं उसको शोक हुआ है, कहीं ना कहीं उसको उल्लास हुआ है. प्रत्येक के जीवन में. क्या मैं इनफैक्ट शुरुआत यही कह के करना चाह रहा था. सर ने एकदम ठीक कहा. सबके जीवन में जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ पे गम भी है, संघर्ष है वहाँ पे जीत भी है. तो कंटेस्टेंट हर कोई ऐसा चुन के नहीं लाता कि ये इसकी कहानी दुख भरी है तो इसको लेके आते हैं. बहुत इलेबोरेट प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं. उसके बारे में आशीष और रजनी ज़्यादा बता पाएंगे. बेसिकली कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ. कौन बनेगा करोड़पति का एक बहुत ही रिगरस ऑडिटेड प्रोसेस होता है जिसके द्वारा यहाँ पर लोग आते हैं. पहले वो ऑनलाइन सोनी लिव पे या फ़ोन या जो भी वेरियस मीडियम्स हैं उसके द्वारा वो पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद एक रैंडमाइजर के द्वारा कुछ एक लोग विच इज़ डिवाइडेड अमंग्स कास्ट एंड योर एज, जेंडर एंड जियोग्राफिकल लोकेशन. उसके बाद से उनको शॉर्टलिस्ट करके उनका साक्षात्कार इंटरव्यू होता है. उस इंटरव्यू के बाद में वो यहाँ तक पहुँचते हैं. उस इंटरव्यू के बीच में 2 लेवल ऑफ जनरल नॉलेज टेस्टिंग होती है. एक रिटन पेपर होता है जहाँ पर जैसे IAS या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है वैसे उनका एक पहले वो एक जवाब दे के पहुँचते हैं तो पहला लेवल का फिल्टर वो रहा. फिर वो जब ऑडिशन सेंटर पे आते हैं तो उनका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होने के पहले उनको एक रिटन 20 क्वेश्चन का पेपर देना पड़ता है. जैसे सारे एग्जाम होते हैं क्लासरूम्स में बैठ के इन्विजिलेटर के द्वारा वो होता है. उसके बाद में उसका रिजल्ट, क्योंकि वो ऑप्टिकल रीडर के द्वारा हम उसको बता देते हैं, हमारे पास उनका रिजल्ट रहता है. फिर उनके साक्षात्कार होता है और उसके बाद में वो यहाँ तक पहुँचते हैं. तो इसमें मल्टीपल फिल्टर्स हैं जिसके द्वारा वो मतलब उनका जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाता है. जहाँ तक रही बात जो लोग हैं, मुझे लगता है कि इस देश में मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है उनका एक स्ट्रगल है, उनके एक किसी न किसी रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें. तो उसमें कुछ थोड़ी हो सकती है, लेकिन सारे ऐसे होते हैं तो आई डिसएग्री होता है. लेकिन बहुत सारे हर विभिन्न उम्र के जेंडर के एज के लोग आते हैं. और वैसे कंटेस्टेंट थोड़ा कम देखने मिलते हैं जिनका नॉर्मल परिवार में थे, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई हुई और नॉर्मली मतलब नहीं, ये मैं इससे डिसएग्री करता हूँ क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वो नहीं करते. जो आपके हो सकता है आपका जैसा जब आप शो देखती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोग याद रहते होंगे. इसके लिए कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भूल जाते हैं, जैसे आप भूल गई. बट ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई ऐसा बायस नहीं रहता है इस बारे में. अमित जी, The next question on the right, sir. अमित जी, Can we take the question on the lady, please? Ladies and ladies. अमित जी नमस्ते, मैं पूजा सामंत. आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फिल्मों के सेट पे आप एक कलाकार के रूप में हमेशा अपने काम में मशरूफ रहते. कई कलाकारों से सुना कि अमित जी से बात करने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो संवादों में बिजी रहते हैं,
संवादों को याद करते हैं, एक कोने में जाके बैठते हैं। आमिर खान ने भी ऐसा ही कहा था। जब मैंने ये नोटिस किया कि केबीसी के सेट पे कई बार जो हॉट सीट पे बैठे कंटेस्टेंट होते हैं वो आपसे काफ़ी इनफॉर्मल हो जाते हैं, बहुत अपनेपन से बात करते हैं, तो क्या ये केबीसी की स्ट्रेटेजी है? और यू मेड देम कंफर्टेबल टू टॉक, समटाइम्स वो आपको अपनी पारिवारिक बातें भी पूछते और आप भी बहुत अच्छे से बात करते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। न जाने किसने आपको क्या पट्टी पढ़ा दी, हम तो सब और कहीं ना कहीं जब हम किसी कला का प्रदर्शन करता होता है कैमरा के सामने, तो न जाने कैसे कोई बात याद आ जाती है कि अच्छा उधर हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस महिला ने ऐसे बोला था, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाता है। तो प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो हम सीख के जाते हैं वो हम जो कंटेस्टेंट हैं उनके जीवन से, किस तरह उन्होंने अपने आप को प्रोत्साहित किया, या कर्मवीर से वो कितना नेक काम कर रहे हैं, उसी तरह का काम और करना, ये चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। एंड कंटिन्यूइंग टू इट, कभी कभी ऐसे होता है कि सामने वाला जो कंटेस्टेंट है उनका जवाब गलत है, बट प्रॉब्ली यू नो द राइट आंसर इवन बिफोर द कंप्यूटर हैज यू नो सेड दैट इट्स राइट और रॉन्ग। सो हाउ डू यू काइंड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते हैं तो हमको लगता है ये आंसर था, तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं व्हेन यू आर एक्चुअली फेसिंग इट? इसीलिए तो उन्होंने मुझे चुना है एंकर कि हम बताते नहीं हैं। मुझे सर आई एम अमीर फ्रॉम पंजाब केसरी, और एक छोटा सा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो बदलाव लाए हैं यहाँ पे, हर बार नए बदलाव लाते हैं, वो काबिल तारीफ भी है, बट क्वेश्चन ये है कि सर शाहरुख खान को इससे पहले अभी क्या कहा आपने, सुना ही नहीं दिया सर। सर एक मेरा क्वेश्चन नहीं है कि मंदिर सर से, मैडम कैमरा ठीक से पकड़िए उनके सामने। हाँ अब बोलिए। मंदिर सर से मेरा क्वेश्चन ये है, आपने शाहरुख खान को लाया, लेकिन सर आप ये मानते हैं कि अमित सर के बिना ये सक्सेस नहीं हो सकता, कौन बनेगा करोड़पति, क्या आप सर मानते हैं? सवाल नहीं समझ में आया। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हाँ हाँ, शाहरुख ने किया था, और जितने अलग अलग भाषाओं में होता है उसमें हम कहाँ हैं? बंगाल में सौरव गांगुली थे, अभी महाराष्ट्र में नागराज मंजुले हैं, और केरल में कन्नड़ में, तमिल में, सब अलग अलग लोगों ने किया है। अभी भी यहाँ जी सर। सर जब कर्मवीर आते हैं, देश के लाखों लोग आपसे प्रेरणा लेते रहे हैं, करोड़ों लोग आपसे प्रेरणा लेते रहे हैं, जब कर्मवीर आते हैं हॉट सीट पर, आप उनसे कितनी प्रेरणा पाते हैं? सर ये गलत बात है कि लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो जितने भी कर्मवीर आते हैं ना, उनसे हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते हैं। अभी हमने आपको कई किस्से बताए, और कई बार ऐसा होता है कि अगर उन्होंने कोई एक संस्था शुरू की हुई है जहाँ पर वो गरीबों को की देख रेख कर रहे हैं, तो हम उनको व्यक्तिगत तौर पर मिल करके उनसे संपर्क करते हैं, और अपनी तरफ से जो भी योगदान हो सकता है चैरिटेबल वो करते हैं। हॉट सीट पे बैठने के लिए जो लोग आते हैं बहुत से डर जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप डरते हैं, ऐसा कुछ है? वही सीट, इससे भी हमको बहुत डर लगता है। Amit sir, hi, Sana here in the Express again. Sir, you took a big risk when you did Youth. It was a time when no Bollywood actor were doing television fiction. And what is your take right now? There's a series, web series, Room of Digital Medium. Are you interested in trying out other mediums also now? हाँ, कभी भी आप किसी से मिलें और बोलें, उनको बोल दीजिएगा हम इंटरेस्टेड हैं, करना चाहेंगे हम। यार बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ बन रही हैं, और बहुत सुंदर वेब सीरीज़ बन रही हैं, देश में भी विदेश में भी। तो कोई हमसे बात करेगा तो हम अवश्य करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रचार कर दीजिएगा मैडम। आखिरी 3 सवालों का वक्त है। How do you guys figure out who should feature in Karamveer episodes? How do you finalize on those people? Sorry, can you come on? How do you figure out who should feature in Karamveer episodes? How do you figure out who other person? Well, there is a entire list of things that there is an entire research team that's there. They go through the background check and the kind of work that they've done. That creative team is after that. As sir was saying, there is a 250 plus people who ensure that everything is impeccable. We try, of course.
can go wrong, but so far everything has been fine. There is a massive research that goes with, and fortunately this country has, though they have not come to limelight, but the country has so many such Karamveers to offer that so far it's not. We've not fallen short of finding them. It's such a complicated show that a lot of people are unable to understand. But if you were to spend a day from the early hours right till the late night, you will find out how complicated this show is. Right from the technology to the working to the management. And on an average, I think our show is about an hour, 15 minutes or 20 minutes. And the efficiency of the show is such that we actually finish the recording within 2 hours' time. That just shows how perfectly managed this show is. And all credit to Sony and their management team. So I keep saying that. Without them, it's not possible to coordinate everything. Yeah, you're most welcome any day. Yeah, I do. I do remember many interesting cases. I can't talk about what has happened in the past few days, but I was very disappointed. Somebody was playing really well and then didn't take a lifeline and lost a lot of money. So I feel very bad for him. I have a lot of admiration for young women who defy their parents, defy their being stopped from being educated and still come and play here and make a lot of money. There's a lot of admiration, and I narrate those stories many times publicly and in places where I go. I work for Beti Bachao, Beti Padhao, and I keep quoting these instances where young girls are stopped. गांव से आती हैं और गांव वाले कहते हैं इसको केवल 7वीं या 8वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद इसको चौका वौका करने को सिखाओ, इसके ऊपर ज़्यादा पैसे ज़ाया मत करो, ऐसे बोलते हैं लोग. सर मैं उसके एकदम खिलाफ हूँ, and I oppose that. They say, why are you wasting money by educating this girl beyond the 8th standard? That's a lot of rubbish. But there are women who actually defy their parents, get thrown out of their home, get thrown out of the homes of their grandparents, but still work on their own and come and win 25 lakh rupees here. They are admirable girls. And I asked them, what are you going to do with this check? They say, I'm going to take this check and slap it on my father's face and say, even a daughter is worth in being in the family. So these are the kind of stories that you get inspired by. सर जी यहाँ पे आरती गुप्ता एबीपी न्यूज़ से सर आपसे और अमित सिंह सर से पूछना चाहेंगे 9 बजे का स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुओं ने वो स्लॉट ओवरटेक कर रखा है. मतलब आप अगर राइवलरी चैनल पे देखें तो कुमकुम भाग्य एंड सब जगह पे बहुओं की कहानी चलती है, तो उस पर केबीसी आना है तो बहुएं और ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना लेती है कि अब केबीसी उनकी मतलब राइटर्स जो है और ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि बहुएं आप कैसे केबीसी को टक्कर देंगी. तो इस वक्त सर अमित सर आप क्या कहेंगे कि बहुओं को कैसे टक्कर देगा है, इस पर आपकी क्या राय है? एंड सर आप टीआरपी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो मेन एस्पेक्ट होता है एक शो के लिए भी. बहू क्या है? सर बहुएं टीवी की बहुएं, सीरियल की सारी बहुएं. What is it? That's a show called Bahu. सर सीरियल की बहुएं सारी जो छाई हुई रहती है. ओके. मुझे मालूम नहीं कि कौन सा शो है वो. सर 9 बजे के स्लॉट में जैसे कुमकुम भाग्य हो गया, कहाँ तो सारी बहुएं छाई हुई रहती है एंड उस पर आप एंट्री ले लेते तो बहुएं हो जाती हैं, अरे बच्चन जी आ गए, अब शो की कहानी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. तो आपके आने से और मेहनत डबल हो जाती है सारे राइटर्स की कहानी. हम तो वही करेंगे जो हमको चैनल बुक कहेगा करने को. सिंह सर आप क्या मतलब तैयारियों के आपको भी पता है कि टीआरपी का उलटफेर हो जाता है केबीसी. इसके बारे में मुझे मालूम नहीं टीआरपी क्या होता है हमको सब नहीं मालूम. हम अपना काम करके चले जाते हैं. हाँ जी, ये सब फिल्में हैं. हाँ देख लीजिएगा,
उसमें हम कलाकार हैं और क्या है, वो आप उनसे पूछिएगा, प्रोड्यूसर से, हम उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। केबीसी का एक लास्ट सवाल, वो डायरेक्टर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आप। केबीसी बोलो, हूटर बज गया। वक्त हो चुका। 19 अगस्त को हमें प्लीज मिलिएगा। I think that was just a random thought to promote something or promote an association. But yeah, if they agree to that, as I said, you know, he can't come as a contestant. That's the rule of Sony. We can't break that. But if it is to promote a cause, and if it is to promote something that is not connected with KBC, then yes, most welcome.